ये जनाब 3 आए हैं छत के लिए। ये बोगनविलास आए हैं और ये कल हमने 40 लिए हैं। कुछ मेरी खिड़की के सामने जा रहे हैं और कुछ इधर आएंगे, बाकी छत पे जाएंगे। कैसा? सो दीज बोगनविलास आर गोइंग अप हमारे रूफ गार्डन के लिए। ठीक है, ये फूल भी आ गए। अब जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस। Share with you that this has not come through in vacuum. There is a reason behind it. And when you read the book, sovereign individual, you'll be able to appreciate what's going on. The biggest threat to, ladies and gentlemen, I'm making a big statement here, which I love to make big statements. In fact, that reminds me about the big statement I made yesterday. That the threat to US dollar today, the sovereignty and the superpower aspect of United States of America is not from any other currency but the cryptos. Therefore, the step towards sovereign stable coin and a step towards Genius Act, and that seems to be working as well. And I think it's a very, very smart crypto. It's actually co-opting digital innovation. The case in point is China's e-currency and India's pirate corridor. Doctor, if you allow me to digress a bit from this topic to the topic we were talking about yesterday, before I forget, somehow I missed that in my notes. We talked about yesterday on SARC climate finance bank. What I would like to propose to you, Doctor, is that if SDPI could collaborate with PBA and with UNDP, we can actually tap into these SARC countries and then try and have had in preparing this presentation and about coming out with a possible roadmap for the future. I hope that Dr. that will come handy for the policymakers too. अगली वाली स्लाइड ना लगा दें, फुल कंट्रोल So constituency to my mind is stable coin. It's again privately issued, but nevertheless is backed by a fiat. Most popular one obviously is US dollar, but then we have yuan as well. And I think Pakistan is seriously considering about the rupees stable coins too. The value basis is reserve management and regulatory, and it is a regulatory product. And the ideal use case, for example, are payments, remittances, and decentralized finance rails. It's basically a shift from printed to the digital side. Clear cut case of financial inclusion. जो आज अभी हम बात करेंगे आगे कि जिस तरह sovereign, sovereignty and balance between the future opportunity. Last slide. Similarly, we also worked with the IMF Technical Assistance Program, and they basically provided us support as what should be the next steps for नहीं, लाइट ही होएगा सब कुछ। गेटिंग अ स्पेशल बुके मेड। और फिर क्या मिला, ये देखो, नरगिस के फूल। माय फेवरेट फ्लावर्स नरगिस। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये नरगिस की नहीं, इंसान की भी बात हो रही है साथ साथ। नहीं करना। अच्छा, क्रिसैंथेमम कहाँ से आते हैं? कश्मीर से और मरी से। ये क्रिसैंथेमम्स उन्होंने शर्ट लगाया है ना जी। अच्छा, शर्ट लगा के वो उगाते हैं। वाह। बाकी फूल ज़्यादा पत्तों की से आते हैं। पत्तों की, हाँ वो सुना हुआ। ग्लैडियोला है वहाँ से आते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। और ये गुलाब जो है मतलब ये पत्तों की, ये भी पत्तों की। ये मतलब चक शहजाद में भी लोगों ने लगाए हैं। अच्छा, फार्म बनाए हुए ना जिनके। ठीक। और आगे चक शहजाद से भी आते हैं और फिर ये स्वाद से आ रहे हैं। नाइस, हाँ, ज़बरदस्त। ये जी शिरीन मुझे ड्राइव पे लेके आई है। आज हम 14वीं का तो नहीं लेकिन 16वीं का चांद देख रहे हैं। ये बोगनविलास लगा दी इधर और इधर भी। तो ये मैं जी उस दिन ये आहिस्ता आहिस्ता हम ऐड करते जाएंगे। अब ऐसे प्लांट्स यूज़ करने जिनको धूप ज़्यादा ज़रूरत हो और टफ़ हो, 2-3 दिन पानी ना भी मिले तो भी ठीक हो। दैट्स द आइडिया। मैंने देखा तो स्नेन मेरे लिए चाय ले आए ऊपर। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ट्रे उठा के सीढ़ियों से चढ़े, तो इट वॉज सो स्वीट ऑफ हिम। सो मेरा चाय का टाइम था तो इसलिए वो फिर ले आया, फिर मैंने आराम से बैठ के चाय पी। बहुत ही अच्छा लगा। कंपनी का तो मुझे मसला नहीं ना। मुझे मगरिब का वक्त क्यों पसंद है हमेशा से। मुझे याद है मैं 13 साल की थी और हमारी पोस्टिंग हो रही थी लाहौर से बन्नू, और हम पेशावर में एक रात रहे। डैडी के बड़े अच्छे दोस्त थे, बेड़े गिलानी, आई थिंक सो। उनके घर हम लोग रहे और
मैं फिर शाम को बाहर निकली, वॉक कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, यही वक्त था। एंड आई वॉज 13 years old। तो 13 साल पे आप सोचते हो पता नहीं ज़िंदगी आगे कैसी होगी, बहुत सारे डर भी लग रहा होता है। और एज़ यूजुअल हमारे पॉलिटिकल हालात बड़े ख़राब थे, बल्कि बहुत ही ख़राब थे। हमें क्या पता था कि 1 साल बाद हम अपना आधा मुल्क ही खो देंगे। तो दिस वाज नवंबर 1970। और एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक अपने मसले होते हैं। आपके स्कूल फ्रेंड्स सबको खुदा हाफिज़ किया होता है, उन सब ने आपको फेयरवेल्स दिए होते हैं, और बहुत ही आप उदास होते हो एक शहर छोड़ के, और वो भी लाहौर जैसा शहर। वो वाला लाहौर भी बड़ा खूबसूरत था, इसके नीले नीले आसमान होते थे, और हम बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजारते थे। स्मॉग जैसी चीज़ का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और लाहौर का पानी मशहूर था पूरी मतलब सारे पाकिस्तान में कि भाई लाहौर का पानी बहुत ही अच्छा है, सेहत वाला है। तो बस फिर हम लाहौर कितने साल, मेरे ख्याल 2-3 साल रह के, और फिर हम वहाँ से गए थे। तो अभी तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है नीचे जाने को इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इट्स रियली नाइस। तो पता चला आई थिंक वलिया कहीं गई भी है, वरना वो होती है तो वो आ जाती है ज़रूर। लेकिन मैं अपनी कंपनी भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। अकेले रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी उम्र हो, हमें अपने आप के साथ गुफ्तगू करनी, अपने आप के साथ सोच विचार करना कि मैंने कैसा सफ़र किया, और अब मैं सफ़र में उर्दू वाला कर रही हूँ, अंग्रेज़ी वाला नहीं। कौन सी जर्नी थी, और फिर अब हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, कि ये लम्हा कितना खूबसूरत है, और इस लम्हे को इधर ही एंजॉय करें। कि मौसम इस वक्त आज है 8 तारीख नवंबर की, और इतना परफेक्ट वेदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेचर जो है ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट टॉनिक, फ्रेश एयर। एंड ये अभी पहाड़ के मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये दरख्त, इसीलिए मैं रूफ़ गार्डन का कर रही थी कि ये ताकि ये जो कंक्रीट है ना वो कम हो और सब्ज़ा ज़्यादा हो जाए।